Hello children, welcome to digital classes of Christ Church Convent Higher Secondary School Gadavara. This video is for class 12th. Subject is accounts. Chapter 14, cash flow statement. First topic of this video is calculation of cash flow from operating activities. Generally, all companies prepare a statement of PL and balance sheet on accrual basis. So, in PL accounts, activities relating to operations of the business is there, but it also includes non-cash items like depreciation and bad debts. Therefore, while calculating cash from operating activities, so non-cash items are excluded in cash flow from operating activities, and you will have a pro forma as per accounting standard 3, and for which you will have two methods, direct and indirect. So direct method can be used when you are given cash sales, cash receipts from debtors, cash purchase, payment to creditors and suppliers, and other operating incomes and expenses in monetary form. And whatever is the difference between the cash receipts and cash payment, so that will be called as cash flow from operating activities. Now you will have pro forma for calculation of cash flow from operating activities by direct method. तो सबसे पहले क्या लिखोगे? ग्रॉस ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स. ग्रॉस मतलब तुम्हें पैसा कहाँ कहाँ से मिला, आय आराम, जिसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं. कैश सेल्स पैसा आएगा, कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स और कस्टमर्स पैसा आएगा, कैश रिसीट्स फ्रॉम कमीशन ब्रोकरेज पैसा फिर आएगा, रिफंड ऑफ टैक्स कैश विल कम, एंड रिसीट फ्रॉम अदर ऑपरेटिंग इनकम लाइक discount is not a cash operating, but only the thing you will not get in cash form. Outflow of cash will not be there. Rental income, है ना, brokerage, etc. Out of all the cash receipts, you will subtract all cash payments. They are cash purchase, payment to suppliers and creditors, पेमेंट टू एम्प्लॉइज़ यानी कि उनकी वेजेस, सैलरी एट्सेट्रा, एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. देन you will have to write cash generated from operating activities, what comes after deduction. Out of it you will subtract income tax. Then you will have cash flow before extraordinary items. Then you will have to add extraordinary items adjustment. Then you will come to net cash flow from operating activities. So this sequence is not in a marshalling form. Remember this. In some questions you may skip some of the transactions and some more transaction may be added. The only particular thing that you have to notice and remember that first you have to write all cash receipts by operating activities, then all operating expense and their subtraction, subtract the income tax and add extraordinary items if required. So whatever terms are written there, so we'll talk about that. First is cash sales. टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल्स माइनस करने से जो बचेगा वो कैश सेल्स कहलाएगा. रिसीट फ्रॉम डेटर्स, यदि ये तुम्हें पता करना हो तो उसके लिए तुम्हें
टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना होंगे। सबसे पहले अकाउंट कैसे बनेगा, जैसे तुम लेजर बनाते थे 11th में या अभी 12th में जो भी तुमने अकाउंट्स बनाए होंगे उस तरीके से। तो क्या हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, या फिर इस तरफ हो सकता है तुम्हारे पास कि कितना लोगों से पैसा बाकी था। फिर डेटर्स कैसे बढ़ते जाएंगे, यदि तुम उधार माल बेचोगे तो टू क्रेडिट सेल्स, टू बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर्ड बिल रहेंगे, या टू बैंक जो चेक डिसऑनर हो जाएंगे। तो डेटर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे तुम्हारे। अब डेटर्स कैसे डिक्रीज़ होंगे, तो जब डेटर्स डिक्रीज़ होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में। बाय कैश बैलेंसिंग फिगर जो रहेगा तुम्हारे पास, बाय बैंक चेक से पैसा मिला, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट यदि बिल विड्रॉ हो गया उसका पैसा कैश मतलब एन कैश हो चुका हो मैच्योरिटी के बाद, डिस्काउंट अलाउड कम हो जाएंगे, सेल्स रिटर्न करेगा कोई व्यक्ति तो उसका पैसा कम हो जाएगा, बैड डेट्स यानी पैसा नहीं मिलेगा तो भी डेटर्स कम होंगे, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से तुम रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब उसके बाद आ रहा है कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स और कस्टमर्स, ये कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्रेडिट सेल्स लिखोगे, उसमें प्लस करोगे करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, और माइनस करोगे करंट ईयर का ही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि डेटर्स से कितना कैश रिसीव हुआ है। कैश परचेस निकालने के लिए टोटल परचेस में से क्रेडिट परचेस को माइनस करोगे, सिंपल है ये तो। अब आते हैं अपन पेमेंट टू क्रेडिटर्स पे। तो जैसे तुम टोटल डेटर्स के लिए करते थे वैसे ही तुमको टोटल क्रेडिटर्स के लिए एक अकाउंट तैयार करना होगा। ठीक है, तो क्रेडिटर्स कैसे बढ़ेंगे, तो जब क्रेडिटर्स तुम्हारे बढ़ते जाएंगे, तो जब कम होंगे तो वो डेबिट साइड में आएंगे, यानी ऑपोजिट हो जाएगा टोटल डेटर्स अकाउंट का। तो कम कैसे होंगे, कैश अकाउंट से, यानी यदि कैश चुकाया गया है, चेक दिए गए हैं तो टू बैंक, बिल्स एक्सेप्टेड हो गए हैं तो बिल्स पेएबल अकाउंट। ये दोबारा एक ही बात लिखी हुई है, डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेस रिटर्न, यदि अपन ख़रीदा गया माल वापस कर देंगे तो क्या होगा, क्रेडिटर्स हमारे कम हो जाएंगे, और क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिटर्स बढ़ेंगे कैसे, पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया, क्रेडिट परचेस उधार माल ख़रीदा, क्रेडिटर्स बढ़ गए, यदि कोई बिल्स पेएबल डिसऑनर हो गया, तुमने कोई बिल एक्सेप्ट किया था और वो डिसऑनर हो गया तो क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, बिल्स पेएबल डिसऑनर होंगे, ये दोबारा लिखा हुआ है यहाँ पर, और चेक डिसऑनर। तो इस तरीके से तुम इसको निकाल सकते हो। और कैश पेमेंट निकालने के लिए फिर वही प्रोसेस होगी, डेटर्स में तुम लिखते हो क्रेडिट सेल्स, यहाँ पर लिखोगे क्रेडिट परचेस, ऐड करोगे करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल पेएबल, और माइनस करोगे करंट ईयर का ही क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना कैश पेड किया गया क्रेडिटर्स को। अब इसी में आता है तुम्हारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो होते हैं जो बिज़नेस को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं और हम उनको पीएल अकाउंट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम केवल वही एक्सपेंसेस लिखेंगे जिनका संबंध मॉनेटरी फॉर्म से है या कैश फॉर्म से है। तो इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, जितनी भी सैलरीज और वेजेस हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की, वो उसमें ऐड करो करंट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो अभी अनपेड है, और करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड का जो एडवांस तुमने दे दिया था, और लेस करोगे करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
और करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कितना पैसा चुकाया। ठीक है। अब इसके बाद यदि तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए तुम क्या करोगे, सबसे पहले ये जो 4 चीज़ें लिखी हुई हैं, कौन कौन सी, कैश फ्लो, ये हम पहले तुमको बता चुके हैं, ये पहले हो चुका है, ये है ना। तो यहाँ हो गया। अब इसके बाद तुम्हारे पास ये जो 4 चीज़ें हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और 3 एक्टिविटीज़ रहेंगी तुम्हारे पास, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा है, इसमें से केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी इसमें इंक्लूड हुई है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इनके बारे में अपन कल बात कर चुके थे। ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं इलस्ट्रेशन 1 2 3 4 वो तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।